Today we have Ms. Shraddha Gupta on the podcast from DGS Realtors. DGS and the S stands for Sons. How difficult has it been carving your own path in a male dominated industry that is real estate? To be in real estate, you need to be thick skinned, especially being a female in a male dominated industry. Drastic change has come in Gurgaon specifically compared to any other place. गुड़गांव अभी पिकअप हो रहा है, उसने 2-3 साइकिल्स देखे हैं, सारे डेवलपर्स ने आके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर किया, गवर्नमेंट आके कनेक्टिविटी करी है, मेट्रो लाइंस बनी है. The next Gurgaon. नोएडा एयरपोर्ट जेवर. अब नोएडा एयरपोर्ट तो कब से बोल रहे हैं लोग बन रहा है बन रहा है बन रहा है. मैं हवा बेचती हूँ. टेक्निकली जो मैंने बोला एयरपोर्ट आएगा, हवा बेचना है, वो आएगा एयरपोर्ट. But when I see properties in Camellias going for 100 CR, somewhere or the other I feel like ये एक stupidity है. जो लोग कमिलियाज में रहते हैं, दे आर लिविंग देयर फॉर अ रीजन. आप सड़क बना दो उस ब्लॉक तक जाने की, आपके घर का रेट ऐसे बढ़ जाएगा. तो खुद ही बना लो सड़क पे. एंड ये कभी नीचे भी आएगा इन योर ओपिनियन? देखो 100 रुपए की चीज कभी 20 रुपए की नहीं बचेगी. आज मैं बोलूँ कि आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कहाँ करोगे सबसे पहले? There is a land parcel. Hello and welcome to my very own podcast, The Adhiraj Sethi Circle. My name is Adhiraj Sethi, and today we're finally talking about the topic that I've been wanting to talk about for so long: real estate. Yes, today we have Ms. Shraddha Gupta on the podcast from DGS Realtors. Please welcome with a huge round of applause. Hello, welcome to the podcast, welcome to the circle. I hope you're comfortable, ma'am. Yes. Hi, Adhiraj. Thank you for having me. It's a pleasure. I look forward to this conversation. Same. Just before we started shooting, ma'am was like, "This is my first podcast, so I'm a bit nervous. So please forgive her if she feels that she is fumbling somewhere." But yeah, let's start with your journey, ma'am. I introduced you as you were working with DGS Realtors, which stands for Devendra Gupta and Sons. Yes. That's your family business. Yes, Let's that's my talk about father. Yes, let's talk about your journey, how you came into the business, and how you are carving your own path in the business and leading from the front with social media also that I keep watching. So let's talk a little about that. So I work in my family business. My dad started this real estate brokerage firm, consultancy, building, construction, everything 30 years back. हम real estate में सब कुछ करते हैं. Okay. So since childhood, I've been seeing him do work. My family, my chacha tai, everybody's into real estate. So I'm born into a family that's always spoken. When I was 11 years old, my dad's office was in Udyog Vihar. So I used to go to Gurgaon, see people all suited, booted going out. So, it's always been fun being in it. So it comes naturally to me. Okay. Carving the way was not easy at all because I started when right after COVID. I was in college. I didn't want my dad to go to work, so मैंने कहा कि मैं try करती हूँ, like I no, why not? I've studied psychology. So I started going to the office. I enjoyed that, the thrill you get going to your dad's office. But I started from the bottom, like literally filing से. Real estate में सबसे important चीज़ होती है paperwork. Okay. तो जो डैड के पुराने अग्रीमेंट्स थे उन सबको फाइल करना ईयरली, डेवलपर टाइप्स, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू मार्केटिंग. थोड़ा सा न्यू डेवलपर्स से मिलना, आउटरीचेस करना, सेंडिंग अ सेल्स टीम आउट. सो it's been Was it hustle always up. the plan to join your family business, or were you planning on something else earlier? Honestly, not really. I never knew what I wanted to do. I've always been that person that one day at a time. But I was doing psychology actually in college because we are 4 siblings. Okay. और मेरे लिए उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था. Okay. How many brothers? How many sisters? I have 2 elder sisters and a twin brother. Okay. So I decided कि मैं psychology करूँगी. It's a study of human behavior. So whatever I do in the future, it'll help me. Fair. So I started doing that. I even interned with the psychologist, a renowned one. But उनके साथ काम करने के बाद मुझे realize हुआ कि एक therapist बनना माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने जैसा है. Okay. कि आप बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए चढ़ तो जाओगे, बट आप वापस नहीं आ पाओगे. सो बिकॉज आई वॉजंट फुली इक्विप्ड और ट्रेन्ड टू गिव थेरेपी ड्यूरिंग कोविड, सो आई वाज गेटिंग इनटू डिप्रेशन माई सेल्फ.
and my parents are very supportive. Like they are my bestest best friends. Okay. So my dad, my mom saw that okay, something's wrong with our daughter. And my dad literally told me कि क्या internship कर रही है, तेरे को कुछ मिलना नहीं है, तू आ real estate में मेरे साथ कर. Okay. उन्होंने मुझे एक चेक बोला उठाने के लिए, एक अंकल से उनकी फैक्ट्री जाके, मेरे घर में रेनोवेशन हो रही थी, तो मैंने एक्चुअली उन अंकल से कारपेट बनवाया था अपने रूम का. तो समहाउ ही आस्क्ड मी कि बेटा आपके डैड रियल एस्टेट में है, मैं उनको इतने सालों से जानता हूँ, मेरे को डीएलएफ में एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, उनको बोलो मेरे को दिला देंगे. मैं घर के मैंने पापा को बोला कि मैं अंकल की शॉप पे गई, उन्होंने बोला. Then he gave me a check after 2 days for one of DLF's launches like 5-6 years back. I was like, बढ़िया business है. अंकल की शॉप पे कारपेट खरीदने गई थी. But I picked up, I was like interesting. Then I started getting into work. I started listening to dad. मैं बचपन में भी करती थी डैड के साथ. उनका फ्रेंड सर्कल सारा रियल एस्टेट का ही रहा है. इंडस्ट्री या तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बनाता है. Okay. So it's been good. मेरा एक क्वेश्चन आया था when I heard that your dad's company is called DGS and the S stands for Sons, and you here are a woman leading from the front. How difficult has it been carving your own path in a male-dominated industry that is real estate, and knowing that Sons में you are not counted as such, you know? पहली बात तो ये टू एड्रेस द सन्स. Yes. अगर आप डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता को मिलेंगे हाँ जी. तो आपको रियलाइज होगा कि उन्होंने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला है. एंड टू बी इन रियल एस्टेट यू नीड टू बी थिक स्किन्ड, स्पेशली बीइंग अ फीमेल इन अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री एज यू सेड. 100%. So we are born and brought up that ways that I've seen it, and it's a thrill for me. And I'm not going to say that it's easy, but being a girl also gives you an upper hand. Okay. When you walk How? into a room with 100 men, they do turn around and see that, oh, who is this? But it also gives me that motivation to prove myself better. Okay. So having supportive friends and family has really helped me. Okay. Let's talk about a little about your first deal. How was that experience? What exactly happened, if you can recall a little? It was a very small commercial deal. Okay. It was actually a family friend uncle's commercial property that he had, और उनको बेचना था. कोई ज़्यादा 1.5-2 करोड़ रुपए की थी. Okay. उन्होंने मुझे ऐसे डिनर पे बोला कि बेटा करवा दे. मैं ऑफिस गई, नेक्स्ट डे मैंने मार्केटिंग करी, एंड आई वेंट टू सी द यूनिट. Okay. So when you go to see the unit, you see around कि किसका office है, who should I approach? So there was a lawyer's office. I walked into his office, and luckily I bumped into the owner of the firm. And I asked him, sir, are you planning to expand? He's like, yeah, is there another unit available? I said, side वाला unit available है. Okay. तो बोलते ठीक है, मेरे को दिला दो. We did the negotiation because the owner of the property I was selling is a really close family friend. तो मुझे खुला हाथ दिया था कि तू negotiation कर ले. मैंने अपने ऑफिस में मीटिंग करवाई. उसके 1.5-2 महीने बाद, बिकॉज इट रियल एस्टेट में डील्स डोंट हैपन ओवरनाइट. Yeah. यू हैव टू बी पेशेंट, इट टेक्स टाइम. 100%. Yeah. तो मैंने कराई मीटिंग और वो नेगोशिएशन हो गई और वो डील क्लोज हो गई. फिर उन अंकल ने जाते जाते मेरे को मेरे डैड को बोला दैट, मेरे डैड को प्यार से सब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आज श्रद्धा ने कमाल कर दिया. पता था कुछ कर सकती बट अब जैसे CEO बिहेवियर दिखाया. So it's a proud moment for me. Nice, nice. People say that real estate is a lot about people more than the property. So that clearly reflects that. 100%. But आपको ऐसा, like you said that you've studied psychology, human behavior. How did that or your experience now after 5 years help you understand how to build relationships, how to build network, how to build trust? Because that's a big factor that goes haywire and people, are concerned about in this industry very specifically. So trust has a very very big role to play in real estate. Trust के 100%. अलावा कुछ भी नहीं है. हम यहाँ पे 2,000 रुपए की टी शर्ट नहीं बेच रहे हैं ऑनलाइन कि आपने खरीदी नहीं पहननी है, आपकी अलमारी में टंगी रह गई. हाँ जी. लोगों की जिंदगी भर की अर्निंग होती है, जमा पूंजी होती है, as people call it. बिल्कुल. So it's very important that you have that kind of trust in The company that the you're company you're dealing dealing with. Yeah. Even for me as a consultant, even I need to trust my client needs to trust me. उसी Yeah. पे चलता है. So it's people, I've seen it with everybody that 30 40 साल पुराने रिलेशंस हैं हमारे इन्वेस्टर्स के साथ. मैं 3rd जनरेशन के साथ काम कर रही हूँ. किसी के दादा ने मेरे
दादा से, मेरे ताया से प्रॉपर्टी खरीदी थी, फिर उसके बाद किसी और से खरीदी मेरी फैमिली में, एंड नाउ आई एम डीलिंग विद देयर किड्स. सो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट. हाँ, हो सकता है वो चारों ब्रोकरों से बात करें, वो उन चारों ब्रोकरों से कोट लेंगे, वो मेरे फैमिली में फ़ोन करके पूछेंगे भी कि मैं खरीदने का सोच रहा हूँ, आप बताओ कि मैं खरीदूँ ना खरीदूँ. तो वो all of that has a role to play. 100%. So trust is the topmost thing in real estate. Nothing beats over it. Yeah. Before we knew that we were going to do this podcast, मेरे दिमाग में जो topic था for this podcast was to talk about the next Gurgaon. So let's start moving towards that direction because अब जो आपका सारा experience है वो हमें यहाँ पे निकलवाना है ताकि people can also learn and know about what's coming up next and make the right decisions. Let's just start with basics. I wanted to know, in your general experience, general view, are people of India, they are looking at real estate as an investment or still looking at it as an emotional purchase? Like you said that वो अपनी पूरी life की जमा पूंजी लगा देते हैं. A smart man would look at it as an investment. Maybe a more emotional person would look at it as an emotional investment. ये एक differentiation आपको कोई दिखी है यहाँ पे इंडिया में? For sure. Hmm. Gurgaon 2000s late 1990s में पिकअप हुआ है. Okay. वो फार्मर्स लैंड है, वो फार्म लैंड था मेनली. So it's literally picked up from dust. Yes. If you see that what it is today, it's happened gradually. Yeah. I used to go to Gurgaon when Ambience Mall had just launched. Okay. वहाँ पे जो अब आप DLF Phase 5 बोलते हो, वहाँ पे सिर्फ मेट्रो के पिलर थे, सिर्फ मिट्टी थी, कुछ भी नहीं होता था. क्यों? क्योंकि मैं डैड का ऑफिस है उद्योग विहार में, मॉम ने पिक कर लिया स्कूल के बाद, एंड वीव गॉन टू द मॉल. आई हैव सीन इट डेवलप इन फ्रंट ऑफ माई ओन आइज टेक्निकली. लाइक हाँ, बीइंग इन दैट फैमिली, आसपास आप देखते हो मिट्टी विट्टी है, कहाँ पापा जंगल में ले आए. Exactly. Like I live, I'm a South Delhi girl, I live in Delhi, so I was Yeah. like, why am I here? Yeah. But you know, when I saw it, now there are people moving from everywhere. Gurgaon is not the money that was there. वहाँ पे तो सारे farmers का land था, वो तो बेच के चले गए, अपनी मौज मस्ती करे. सारे डेवलपर्स ने आके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर किया, गवर्नमेंट ने आके कनेक्टिविटी करी है, मेट्रो लाइंस बनी है. पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया आर मूविंग टू गुड़गांव टू वर्क. इट्स द कमर्शियल हब. Yeah. सो गुड़गांव हैज़ डेवलप्ड ओवर टाइम. वहाँ पे सड़कें बनी तो लोगों ने आना शुरू किया. आज की डेट में आपका 100 करोड़ का घर कहाँ है? गोल्फ कोर्स रोड पे. Yeah. वहाँ पे कौन रह रहा है? दिल्ली के डिफरेंट पार्ट्स के लोग, फ्रॉम ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, हु वांट टू upgrade their standard of living. Why do you think this drastic change has come in Gurgaon specifically compared to any other place? Because वहाँ scope है. In Delhi, the land is saturated. Large land parcels नहीं मिलेंगे अब आपको. Okay. यहाँ पे सब कुछ establish हो चुका है. It's heritage now. यहाँ पे भी 400-500 करोड़ की properties है. But that is close to Racecourse Road. That is close to where Narendra Modi ji lives. आप वहाँ से जितना पास रहोगे दिल्ली में, उतने आपके घर की ज़्यादा वैल्यू है. तो दिल्ली वैसे डेवलप हो चुका है. इट्स, आई वुडंट से इट्स सैचुरेटेड, इट हैज़ मोर स्कोप. कोई अंत नहीं है दिल्ली के रियल एस्टेट का. बट गुड़गांव अभी पिकअप हो रहा है. उसने 2-3 साइकिल्स देखे हैं. इट हैज़ मोर स्कोप, इट हैज़ मोर infrastructure that can be developed. So, Okay. Yeah, like you said, it's a commercial hub. वहाँ पे big multinational companies have set up offices so that work culture is strong in that area. उसके वजह से लोग आसपास that after work drinks going out, 100%. that's a whole concept of Gurgaon, I feel. But मेरे को अब ये जानना है, जो the first question था, ये गुड़गांव का चलो बुल रन तो आ गया, मे बी और ग्रोथ आएगी, ये एक अपॉर्चुनिटी शायद कुछ लोगों ने मिस कर दी हो. ऐसा क्या नई जगह आ सकती है, मे बी नियर दिल्ली और इवन इंडिया एज अ होल यू कैन टॉक अबाउट, जहाँ पे ऐसी ग्रोथ पोटेंशियल है जो गुड़गांव ने दिखाई है? नोएडा एयरपोर्ट, जेवर. सीरियसली? या नोएडा एयरपोर्ट तो सब लोग बोल रहे हैं कब से बन रहा है. अभी भी आई थिंक देव ओनली बिल्ट वन टर्मिनल. Why Noida though? Why Noida specifically? What's that potential that you see in Noida? आपने बोला गुड़गांव जैसी ग्रोथ. गुड़गांव की ग्रोथ 1-2 सालों में, 5 सालों, 10 सालों में तो नहीं, उसको भी 20-25 साल लगे हैं. बिल्कुल. With Noida also,
I am a pro Gurgaon, like pro Gurgaon. Okay. मेरा दिल वहाँ बसता है सब कुछ, like it's my work, everything. But for Noida, the airport coming up is going to be a big deal. Airport gets more people. जैसे 100%. मैंने आपको बोला कि गुड़गांव फार्मलैंड था, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं पहले रियल एस्टेट में। कैसे बढ़ता है रियल एस्टेट? ऐसे ही बढ़ता है ना कि लोग पहुँचते हैं, वहाँ पे कोई बसावट शुरू होती है, फिर वहाँ बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, सो ऑफिसेज खुलते हैं, ऑफिसेज में लोगों को आने के लिए कनेक्टिविटी और चाहिए तो रोड्स बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, दैट्स हाउ इट बूम्स. Exactly. So Noida is picking up, and how it's picking up is in a much more planned way than Gurgaon is. Gurgaon happened so because there were more developers, there were more people doing modernization here. But क्योंकि जो वो गलतियां वहाँ कर चुकी है वो थोड़ी सी रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नोएडा में भी काफ़ी स्कोप है अगर वो ढंग से कर दिया जाए. The only drawback Noida has is that it's leasehold, but from what I hear in rumors in the market and everything, वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली फ्री होल्ड कर दिया जाएगा. सो नथिंग लाइक इट. वहाँ पे टाइम लगेगा, होटल्स बनेंगे, वो भी लाइफस्टाइल What is आएगा. the time span that you're talking about right now? ये growth, ये change कब दिखना 15 start हो से जाएगा? 20 साल तो टोटल लगेंगे. एरो सिटी अब जाके पिक हुआ है, 10 साल पहले बनना शुरू हुआ था. Okay. सो वहाँ पे भी अब एयरपोर्ट आएगा, फिर एरो सिटी बनेगी, फिर वहाँ JW मैरियट आएगा या कोई बेटर होटल आएगा, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, वर्ल्ड मार्क जैसी जगह खुलेंगी, ऑफिस स्पेसेस बनेंगी. ऑफिस के लिए ऑलरेडी गुड है, इंडस्ट्रीज बहुत सारी है वहाँ पे, सो नो कंपटीशन टू दैट. फिल्म सिटी आ रही है, Okay. स्पोर्ट्स सिटी भी है, तो दैट वाइज वहाँ पे बहुत सारा स्कोप है. Okay. Abhi, looking at prices in Gurgaon, sometimes I personally feel like they're very inflated and hyped up in some manner or the other because सबको कमेलियास का घर चाहिए, सबको उसके आसपास रहना है. Do you think that ये जो nuances होते हैं जब लोग बोलते हैं that एयरपोर्ट आ जाएगा, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत बड़ा हाइप आया था, ये हाइप मतलब आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देता है प्राइसेस एंड pre like even right now if you look at prices just on the basis of airport aa jayega, already land prices are pretty expensive in Noida. ये जो प्री डिटर्मिन करके डिसाइड कर लेते हैं कि ये तो होगा ही होगा, इसको बढ़ा दो प्राइस, ये एक ड्रॉबैक है नोएडा का भी इन माय ओपिनियन आई फील. I don't know about Noida. I don't want to even comment on Noida about Okay. it because Gurgaon is my playground. For Gurgaon, I honestly feel मैं हवा बेचती हूँ. टेक्निकली जो मैंने बोला एयरपोर्ट आएगा, हवा बेचना है, वो आएगा एयरपोर्ट, जो 5 साल बाद डिलीवर होएगी प्रॉपर्टी. आज मैं प्री लॉन्च पे बेची हूँ, तो आई एम टेक्निकली सेलिंग एयर. तो यू हैव टू बी दैट लॉजिकल, यू हैव टू इमेजिन व्हाट द फ्यूचर इज गोइंग टू बी लाइक. आई लाइक क्लाइंट्स those only who have that kind of imagination. Okay. सो गुड़गांव में जो ये डेवलपमेंट आई है द्वारका एक्सप्रेसवे, उसको काफ़ी टाइम लगा है. वो जो हमारा एक्सप्रेसवे बना, इट वाज लॉन्च 15 years ago. तब वहाँ पे शोभा ने एक प्रोजेक्ट बेचा था 5,000 स्क्वायर फीट पे. आज वो 2025 पे मिनिमम ट्रेड होता है. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स मेक अ डिफरेंस. एंड गुड़गांव, आपको पता है 100 करोड़ का कमिलियास, पर गुड़गांव मार्केट हर सेक्टर को केटर करता है. जो इकोनॉमिकल स्ट्रेटाज है, लोअर मिडिल क्लास, वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग्स भी हैं, वहाँ पे प्लॉटिंग भी है जो 1-1 करोड़ की मिलती है, दीनदयाल में आती हैं जो छोटे साइज़ की होती है, हुडा की भी चीज़ें, कमर्शियल में, एवरीथिंग दे केटर टू एवरीबडी. देयर आर पीपल मूविंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टाउन्स इन हरियाणा टू सोनीपत, पानीपत, families are moving to Gurgaon. So everything is So Gurgaon available. is still investable in your opinion? 100%. And where should someone invest in Gurgaon? Where depends, number one, कि आपकी पेमेंट कैसी है. Okay. Number two, there are 2-3 upcoming areas. Like SPR, everybody knows. Golf course extension तो टॉप पे चल ही रहा है. Okay. उसका तो कोई टक्कर ही नहीं आज की डेट में. It's the next golf course road. Okay. द्वारका expressway with all the connectivity to Delhi airport. All Fair, three. fair. And just an end note before we end the general discussion segment. As a realtor yourself, if you can give 2, 3, 4 pointers as to what one should be looking at very specifically before making a real estate investment in, let's say, Gurgaon specifically. Number one, location. लोकेशन तो है ही. Okay. अभी नहीं तो आज की डेट में वो लोकेशन हो सकता है बंजर जमीन हो, लैंड हो, Okay. बट 5-10 सालों में वो क्या होगी, वो सबसे पहली चीज देखनी चाहिए इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. Okay. नंबर 2, अ क्रेडिबल बिल्डर.
Okay. उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना Okay. वो बहुत ज़रूरी है अब रेरा आ गया सो इट्स ईजियर सो यू कैन चेक एवरीथिंग अबाउट दैट बिल्डर सो दैट नीड्स टू बी डन What is this RERA? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी Okay. सो जैसे If you can आरबीआई talk a होता little है more जैसे about that. आरबीआई होता है फॉर योर फाइनेंसेस वैसे रेरा एक अथॉरिटी है लीगल बॉडी है जो सारी रेगुलेशंस करती है जो सारे डेवलपर्स प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उनकी सर्टिफिकेशंस होती है उनके नक्शे पास होते हैं उसमें व्हेन Oh, यू बाय अ लैंड यू हैव टू गेट इट this is an online database? yeah you get when it's authorized when that plans are passed only then you get it online but otherwise the developer has to go to the RERA office and give in papers of their land कैसा project उनको बनाना है commercial बनाना है residential बनाना है plotted development बनानी है सब कुछ उनको पहले पास कराना पड़ता है इस अथॉरिटी से और ये 2016 में बनी अथॉरिटी उससे पहले तक it was real estate wasn't an organized sector at all. Okay. So that is why earlier there are developers that are absconding, there are developers who are not there in the market anymore. is क्योंकि उन्होंने कुछ बेचा मार्केट में और जो फंड्स उठाए उससे और लैंड पार्सल खरीदा और पिछले वाले का डिलीवरी नहीं दी. Whereas अब रेरा के आने से there is something called an escrow account. Okay. दैट अ डेवलपर जिसमें आपके फंड्स जाते हैं जो आप उस प्रोजेक्ट के लिए उठाते हो कि आप वो ही फंड्स यूज करोगे उस प्रोजेक्ट में so your laundering siphoning doesn't happen. Oh, wow. That's something new. I didn't know that either. But that was a general discussion with Miss Shraddha. Already interesting conversation. But we have some fun rapid fire like questions coming up in the next segment, which is the hot seat. Stay tuned, guys. We'll catch you in the next segment now. Welcome back. We are now in the hot seat segment where I have some rapid fire like questions. Okay, so you are on the hot seat. If you can feel it, it's garam now. ठीक है? Yeah. So you have to be quick and quirky with your answers. This is a little fun segment. ठीक है? Let's start. Gurgaon or Delhi, which one feels more like home? Delhi, but I wish it was Gurgaon. Okay, fair. Land or flats, what's the smarter buy in 2025? Land any day. Land is gold. They don't make it anymore. Okay, nice, good answer. Luxury or affordable, what's the bigger long-term play? Luxury. It Luxury? appreciates. It's aspirational. Okay, okay. One real estate myth buyers seriously stop believing. मार्केट में मंदा चल रहा है मतलब ये पीपल थिंक दैट it's a मार्केट bearish स्लो market. चल रही है या अच्छा, it's not नो still रजिस्ट्रार bullish. के ऑफिस जाके देखो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं वहाँ Okay, okay. Craziest or funniest client request you've ever received? ये एक अंकल आए थे 4-5 वास्तु कंसल्टेंट्स लेके हाँ ये वास्तु का मेरे को भी नहीं समझ Like आता सब why कुछ- people are so stuck up with vastu in India. Do you face this issue a a lot? lot. Yeah. That's why I don't do these delivered ये residential. Like I do it. north-facing, बहुत east. मुश्किल होता है. Like But is that a factor that plays a big role in real estate in India? 100%. That's why I'm saying that this person I showed, like this client of mine, 6-7 months I showed him like at least 50-60 builder floors. Okay. और जो उन्होंने फाइनलाइज करे लास्ट में 2-4 उसके बाद बोलता मैं वास्तु वाला बंदा लेके आऊंगा ऐसे अंकल आप पहले ही बता देते मैं 50-60 में से शॉर्टलिस्ट करके आपको दिखाती 10-12 अगर आपका था ही इतना टाइम वेस्ट कर like दिया मेरा. yeah like give me some like and it was like just my beginning in real estate so I was like Yeah. dad like I went back home I told my dad वहाँ पे तो गर्मी में you know in the heat वहाँ पे एसी वेसी नहीं चलते हाँ, पंखे obviously. like एकदम जून के महीने में कराया था उन अंकल ने मुझसे but madness. What do you think about the fact that so much of your work is just useless, you know, many a times, but one thing that works will cover all your wasted efforts also. Number one, it's not useless. Okay, don't say anything to my business. It's my bread and butter. Useless sometimes in the sense that आपने इतनी effort डाली but deal crack देखो पेशेंस लगती है रियल एस्टेट में हाँ एंड इट्स अ लुक्रेटिव इंडस्ट्री 100%. जो मैं 4-5-6 महीने एक साल भी लग जाता है कुछ कुछ डील्स को मैच्योर होने में करती हूँ और जब उसकी ब्रोकरेज आती है जब आपको गुडविल मिलती है मार्केट में पीपल अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क देन इट स्पीक्स वॉल्यूम्स और जो मेरी रिलेशनशिप इट्स नॉट वन ट्रांजैक्शनल Yeah. इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दैट आई एम बिल्डिंग आज वो मुझसे प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो कल को जब वो बेचना चाहेंगे रेंट पे चढ़ाएंगे लीज पे एनीथिंग दे वांट टू डू दे वांट टू इन्वेस्ट फर्दर दे विल कॉल मी अप Yep. दे विल रेफर मी टू समबडी एल्स माई बिजनेस इज ओनली बेस्ड ऑन रेफरेंस Yep. मैं खुद सिर्फ उन लोगों के साथ काम करती हूँ जिनको मैं जानती हूँ और आई हैव लाइक म्यूचुअल कॉन्टैक्ट और लाइक समबडी आई नो ऑफ और थ्रू Hmm. आई डोंट वर्क विद एनी पीडी लाइक
And Delhi is small, so you tend to get Yeah. to know people. Yeah. But real estate में मेरे लिए भी कि वो client Does it get demotivating sometimes? a lot of times. So what do you बहुत do? बारी 6 महीनों तक डील्स होती हैं, लाइक चल हाँ. रही होती है, टोकन वोकन बयाना दे देते हैं, बट फिर वो नहीं होती. सो यू हैव टू Then what do you do to like get you go over to that? square one, you start looking for the property again for that client, or he goes to another broker also sometimes. बहुत कुछ होता है. You have to fall on your face multiple times. That's why I said you have to develop that thick skin. Okay. It's not easy, but it's a lot of fun. It's thrilling. It's too good. Like as a female, I enjoy it. I think for men, it's even better. Dream client, Bollywood celebrity, cricketer, or politician? Any one of these? Only one I will answer. Huh. Virat Kohli. That's your dream client. He has a house in Gurgaon, no? Were you the one who sold it? to No, him? I wish I was. Though everybody knows that his broker sells him 20,000 की चीज 30,000 पे, पूरी market को पता है. So, Mr. Virat, Kohli, if you're listening, please come here to us openly. हम आपको discount देंगे. Brokerage भी नहीं लूंगी. biggest red flag when you're dealing with a buyer. मेरे सामने खड़े होके फोन पे बात करते हैं दूसरे ब्रोकर से, लाइक मैन प्लीज थोड़ी सी तो इज्जत दिखा दो. Okay, that's a red flag. You wouldn't want to deal with a buyer like that. नो नॉट Okay. गुड. Okay. या तो साथ खड़ा करो, ये फोन पे खुसर पुसर क्या कर रहे हो आप? ये इतना बोल रही है वो हाँ. देख लो. अच्छा मैं आ रहा हूँ देखने, उसने ये दिखाया है, तू ये मत दिखाइयो. ये अंकल बता दो आपने क्या देखा है, वो नहीं दिखाऊंगी, कुछ बेटर दिखा दूंगी. लाइक टेल मी योर रिक्वायरमेंट नाइसली, आई विल फुलफिल इट. If you don't know and you just The have bags of problem is money, many people don't know what they want, na? They want to know what's there and then they want to build that's what what I'm they saying want. कि कुछ तो बताओ कि श्रद्धा मेरा या तो बजट इतना है, या मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मेरी पेमेंट है ये. जैसे इंडस्ट्रियल लोग होते हैं, उनकी जो पेमेंट आती है वो डिफरेंट टाइम स्पैन्स में आती है साल भर में, तो दे वांट अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट Payment प्लान plan, प्रॉपर्टी. yeah. सम पीपल डू ट्रेडिंग, जो खरीदते सर्टन अमाउंट पे 6 महीने बाद बेचना चाहते हैं. कुछ लोग जनरेशनल वेल्थ के लिए बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं जो 10-10 15-15 साल. तो मुझे कुछ तो आइडिया दोगे आपको क्या चाहिए. मैं पोर्टफोलियो मैनेज करती हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, तो यू विल हैव टू बी ओपन एंड क्लियर विद मी. दैट्स व्हाट आई सेड. इट्स अ बिग चंक ऑफ मनी दैट आई एम इन्वेस्टिंग ऑफ योर्स. आप मेरे को नहीं बताओगे तो फिर मैं आपकी बेस्ट मदद नहीं कर सकती. If you could design your dream home, where in Gurgaon would it be? छतरपुर डेरा मांडी फार्म. Why? एक फार्म है, उस पे मेरी नजर है, क्या? मेरे को खरीदना है वो. वही farm. हाँ, तो और खुद खरीद. why aren't you? अच्छा, you're waiting to funds. और Okay. मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, वो थोड़े साउथ दिल्ली वाले हैं, तो बोलते नहीं हम यहाँ बहुत खुश है बेटा. Okay. Quick one in real estate. Gut feeling works more or data? डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग एंड गट फीलिंग फॉर क्लोजिंग. Okay. How is that different? दैट डेटा कि आप क्या खरीदोगे, हाँ. और गट फीलिंग कि हाँ Like जी, लोग आपसे पूछते हैं इसमें कितना परसेंट ग्रोथ आया है हाँ year हाँ on year, ROI etc, पूरी etc. कैलकुलेट होती है, अच्छा. तो बहुत फर्क पड़ता है. Okay. Okay. सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है. यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस. एक डील में नेगोशिएशन होती है, कॉमन ग्राउंड पे ढूंढना पड़ता है, फेयरनेस होनी चाहिए ब्रोकर की. ब्रोकर तो छोड़ो, क्लाइंट के बीच में, डेवलपर के बीच में, देयर शुड बी फुल क्लैरिटी. सो एवरीथिंग मैटर्स. One Gurgaon location that's totally overhyped. एट दिस पॉइंट टुडे, Yes. साइबर हब. Cyber Hub या prices are like crazy high. या और वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है. DLF सब कुछ अपने पास रखता है. क्यों करता है ऐसे DLF? उनकी मोनोपोली तो नहीं है, बट दे आर द biggest players in the market. They are the ones who've made what Gurgaon is today. गुड़गांव की स्काईलाइन अगर आप देखोगे जो इतनी खूबसूरत है, वाओ, टू गुड, वो DLF की देन है. Okay. आप अगर NH8 पे फ्लाईओवर पे ट्रैवल करोगे, आप लेफ्ट राइट देखोगे, चलो लेफ्ट साइड पे मेनली दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हो, मानेसर टोल, इट्स ऑल DLF, सारी बिल्डिंग के टॉप पे. सो इट्स देम, बट आई थिंक इट्स ओवरहाइप्ड इज बिकॉज दैट देव गिवन so much there, but वहाँ पे इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. पार्किंग का थोड़ा सा इशू है, बट दैट्स व्हाट दे आर स्लोली एंड स्टेडीली रिजॉल्विंग इट. they've made 2 buildings. अगर आप एम्बियंस मॉल और DLF की जो कंस्ट्रक्शन है उसके बीच में देखोगे, they've made 8 levels of a parking building. So all of that is required. They're fulfilling it. So right now it's hyped, but I'm hoping that it's going to get better. The water logging issue
Hopefully we'll get better in Yeah. Gurgaon. Yeah, so let's talk a little about that. So I also have a property, like my family has a property in Gurgaon, and we know that there is a major waterlogging issue, especially for houses that have a basement. Yeah. Why is that, firstly, and what's the government or what's DLF doing about fixing that? भाई का बहुत लॉजिकल जवाब है, बताती हूँ. बिल्कुल. गुड़गांव में आपने सुना है अरावली हिल्स होते हैं, दिस एंड दैट. तो अरावली ऐसे है. तो गुड़गांव की जो गोल्फ कोर्स रोड है, दैट इज द लोअर पार्ट ऑफ दोज हिल्स. सो द स्ट्रीम्स, बारिश होती है तो ऑब्वियसली सारा फ्लो करके पानी आएगा, तो नीचे ही ना. तो इसलिए गोल्फ कोर्स रोड भी फ्लड हो जाता है. या क्योंकि वो एक्चुअली पानी का जाने का नेचुरल तरीका है. दैट्स द नेचुरल रूट ऑफ वाटर दैट वाज सपोज्ड टू बी देयर. हमने वहाँ गोल्फ कोर्स रोड बना दी, प्राइवेटाइज कर दी, वो अलग बात है. तो वी नीड बेटर ड्रेनेज सिस्टम देयर. यस. द इशू इज दैट यस. दिल्ली में भी होता है. अब साउथ एक्स देखो, अब जीके देख लो. ग्रेटर कैलाश में जीके 2 में ऊपर पहाड़ी है, एम ब्लॉक मार्केट पे, तो सारी नीचे सावित्री की रोड ब्लॉक्ड होती है. क्यों? क्योंकि वो पानी वैसा फ्लो करता है. सो जहाँ पे Okay. भी वाटर लॉगिंग होती है, इट्स नॉट क्योंकि वहाँ सड़कें खराब है. 100%. इट्स बिकॉज द वाटर इज कमिंग फ्रॉम समवेयर. इट नीड्स टू फाइंड अ वे टू गो आउट. तो ये ड्रेनेज सिस्टम कैसे ठीक होगा? तो गुड़गांव में वो रेजर्वॉयर्स बना रहे हैं दैट आर पुटिंग इन पाइपलाइंस एंड एवरीथिंग, एंड इट्स नॉट ईजी. अगर वो एक ही बारी में पाइपलाइन का काम शुरू कर देंगे तो आधी सड़क ऑक्यूपाई हो जाएगी, काम हो रहा है तो ट्रैफिक हो गया, तो वो दिक्कत है. सो ऑब्वियसली पीपल डू इट ओवर टाइम. Slowly, gradually. एंड द इशू विद द इंडियन टेंडर्स इज दैट कि वो Yeah. काम थोड़ा कच्चा करते हैं. Yeah, yeah. So that issue keeps resolving, keeps coming up. Okay. तो अभी तो नहीं ठीक हो रहा, basically you're saying थोड़ा टाइम टाइम लगेगा बट हो रहा है. यार पेशेंस दिखाओ थोड़ी. क्या हो गया है? ओवरनाइट नहीं होते 10 के 100 करोड़. टाइम लगता है रियल एस्टेट में. 100%. इट्स इमूवेबल, इट्स इंटेंजिबल, इट मेक्स अ डिफरेंस. One thing clients always underestimate about real estate agents. हम कुछ नहीं करते, इजी मनी है. Okay. अंकल टेबल की इस तरफ आके देखो. Okay. Why do you always refer to uncles? Why not aunties? Aunties also, but aunties, females have a very big role to play. 100%. They are the ones who initiate it, and they are They the make ones who the house a influence home. it. हाँ, exactly. Yeah. बट वो नेगोशिएशन, वो चाबी घुमाने की, वो देखने आने, कांटेक्ट करने के लिए इल बी द हस्बैंड ओनली. इफ इट्स द आंटी, इट्स ऑनेस्टली ईजियर फॉर मी. मैंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है, खुद फीमेल हूँ. लाइक यू नो, यू मेक अ रिलेशनशिप. Yeah. आंटी से अब मैं प्रॉपर्टी खरीदेंगी तो इसी से खरीदूंगी, बेचूंगी. एक तो अपनी बेटी बना लेती हूँ, मेरे को दैट्स अ प्लस पॉइंट. बट विद लाइक uncles is because I have a vast investors bank. Like Yeah. I have people, or people I've known through my father for years. So I take care of their portfolio. So I call them that. मैंने उनके साथ lunches dinners करे, छुट्टियों पे गई हूँ, आज उनके पैसे लगा रही हूँ. हाँ. तो वो रिस्पेक्ट है कि उन्होंने मुझे टेक्निकली बड़ा किया है. तो अगर मैं उनके 100 करोड़ रुपए वेस्ट नहीं कर सकती अपने 10 लाख की कमीशन के लिए. सो Fair. आई हैव टू मेक श्योर कि आई गिव देम द राइट कंसल्टेशन, आई गिव देम द राइट एडवाइस, चाहे वो मुझसे ले ना ले. Okay. And the final question before we end the hot seat segment is, if properties in Gurgaon could talk, what would they say? We are the future. Great answer. I would give her a 9 on 10 just for that answer. So yeah, that was the hot seat segment. Very quick and quirky answers. I think काफी अच्छा hot seat segment गया है after really long मेरे podcast पे. So hope you guys enjoyed that. We are now going to be moving to a more serious segment where we are going to be talking about numbers, finances, because it's the Finance 101. So yeah, we'll catch you in the next segment now. Welcome back. We are now in the Finance 101, where I want to know something numbers related, because real estate is all about investments. My first question is basic. How much of the Delhi NCR market is end user driven versus investor driven? Like you said that people sometimes buy it just to flip it, trading करते हैं. काफ़ी लोग अपना generational wealth बनाने के लिए एक बहुत बड़ा land लेते हैं, like you said. So what percentage divide is there in terms of, let's say, like 100% में से? दिल्ली एनसीआर में तो मेनली एंड यूजर्स ही हैं. Okay. बट जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, दे आर deep pocket people. They have a lot of money. Okay. Delhiites. Okay. So they are the people who are investing outside of Delhi. Okay. As I said earlier also, गुड़गांव में गुड़गांव का पैसा नहीं है, बाहर से आया सारा पैसा. 100%. सो दिल्ली का भी सेम सिस्टम है. Okay. दिल्ली का खुद का लैंड क्योंकि इतना कम बचा है, देयर स्कैरसिटी, देयर नो नॉट मच लैंड पार्सल्स लेफ्ट, सो ऑब्वियसली इट्स मोर एंड यूजर ड्रिवन.
ओके। यहाँ पे अब कोठियाँ बिकती है 200 करोड़ की लुटियंस दिल्ली में, 400 करोड़ रुपए की। दैट इज़ व्हाट इट इज़ हियर। हम्म। नाउ यू कांट बाय अ प्लॉट हियर एंड देन डू इट। यहाँ यूजुअली बिल्डर फ्लोर्स का है, आप आउटराइट खरीदो, कोलैबोरेशंस का सिस्टम है। दैट्स व्हाट हियर इज़ इन दिल्ली। So what percentage would you say is end user driven and what percentage is purely investor? 50-50। 50-50 होता है, like half your customers would be like मेरे को investment के लिए ही देखना है. Okay. And like we spoke about appreciation, let's talk about Gurgaon because that's your playground. Gurgaon में क्या average appreciation आई है over the last 5 years since COVID? I feel like कोई massive boom आया है तब से. And अब आगे next 5 years की आपकी क्या prediction है? गुड़गांव में कोविड के बाद तो बहुत सारा बूम आया बिकॉज लाइफस्टाइल वेलनेस इन सब की इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है। नाउ पीपल डोंट it square feet matters to them but Hmm. not so much as the amenities do. Okay. Having a clubhouse, having a good lifestyle, a park to walk in, swimming pool, gym, jacuzzi, steam sauna, all of these amenities, security, 3-4 tier security, car park का कोई issue नहीं है। ये सारी फैसिलिटीज अब लोगों को चाहिए, इसीलिए Okay. गुड़गांव में अप्रिसिएशन हुई है। And year on पीपल year क्या appreciation देखने को मिलता है? 4x 5x देख सकते हो आप Year on year. in certain projects, yes, because Oh it's all about damn. delivery। जब आप एक साइकिल होता है रियल एस्टेट में कि जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, जब वो मिट्टी होता है, वो ग्राउंड जीरो पे होता है, वो अपनी बेसिक वैल्यू पे होता है, बेसिक सेलिंग प्राइस पे। Okay. जैसे जैसे उसकी कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाती है, वो अगर 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, 7th फ्लोर पर उसकी कंस्ट्रक्शन पहुंचती है, दैट्स व्हेन सम अप्रिसिएशन हैपन। जैसे डीएलएफ आबर देखते हो आप, Hmm. आबर में आज की डेट में प्रीमियम उतने का है कि जितना आपने इंस्टॉलमेंट दे रखी है, 4 करोड़ रुपए लोगों ने दे रखे हैं उसके, और 4 करोड़ रुपए प्रीमियम उनको मिल रहे हैं उसमें। Okay. वाई? बिकॉज उसकी कंस्ट्रक्शन वहां तक पहुंची, इट इज़ अ डीएलएफ प्रोडक्ट, वहाँ का इकोसिस्टम बनेगा पूरा। What is this again? It is another residential complex by DLF on Golf Course Extension Road. It was launched right after COVID, Okay. and this was a project that DLF launched after a good 6-7 years, a residential project, a good one in Gurgaon. Hmm. और उसमें आज की डेट में वो पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड भी नहीं है, उसकी पोजेशन भी नहीं मिली है। वो उसकी 50% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। वो जितने की आप पैसे दे चुके हो पेमेंट प्लान में, 4 करोड़ रुपए आप दे चुके हो, उतना आपको प्रीमियम ऊपर से मिल रहा है मार्केट में। दैट इज लिटरली 10x मनी। Okay. Okay. So that's what you're making. But obviously, that is for the top 10 percentile developers. It's the location that matters. अगर आपने द्वारका एक्सप्रेसवे पे 10 साल पहले लिया था तो वो अब जाके अप्रिशिएट कर रहा है। Hmm. बट Hmm. वो ये कि आपने 5,000 की चीज़ खरीदी थी, आज वो 20 पे ट्रेड कर रही है। बट यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ Okay. बॉल Okay. गेम। Fair. And being a realtor, broker yourself, you must be dealing with a lot of developers. And obviously, DLF is what made Gurgaon, like you said. But आज की date में there are so many other developers also. M3M है, Godrej भी आ गया है, and then Elan है. Which is the second best developer in your opinion in today's Gurgaon market? एलान, Elan? Why Elan? क्योंकि वो भी लग्जरी बेच रहा है, Okay. और जो वो लग्जरी बेच रहा है वो एस्पिरेशनल है। लग्जरी वैसी एस्पिरेशनल है सबके लिए। 100%. एवरीबडी वांट्स टू बी बेटर। Hmm. जो इंसान साइकिल चला रहा है उसको गाड़ी चलानी है, जो गाड़ी चला रहा है उसको बड़ी गाड़ी चलानी है, दैट वेज। Fair. सो एलान जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे स्टार्टेड विद कमर्शियल ओनली, Hmm. एंड इफ यू सी द कमर्शियल प्रोजेक्ट्स दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। Okay. कमर्शियल जिसकी गाड़ी गुड कमर्शियल में चलती है, जिस डेवलपर की, वो रेजिडेंशियल भी अच्छा चला लेते हैं। Hmm. उनका जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे लग्जूरियस प्रोजेक्ट आ रहा है एम्परर के नाम से, प्रेसिडेंशियल के नाम से, इट्स बीइंग कंपेयर्ड टू कमिलियास। Oh. या बिकॉज जब तक वो डिलीवर करेंगे, वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस है उसमें, इट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो Okay. दे That या could be an investment point for people. या सो दैट्स व्हाट इट कंप्लीटली डिपेंड्स। जैसे M3M, Hmm. उन्होंने गोल्फ एस्टेट लॉन्च किया है, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, पूरा कॉन्डोमिनियम है 200 एकड़ का। Hmm. उसमें डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे एक एक करके, जैसे अरालियास, मग्नोलियास, कमिलियास भी एक एक करके लॉन्च हुआ है, Hmm. लाइक ओवर अ स्पैन ऑफ 20 years। Hmm. सो सेम वे ऑल these developers are making a full condo living। Hmm. 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 So Elan is one of the best, I think. I really like their product, Okay. and the बचपन. pricing is great। Okay. बचपन से मेरे को बस एक चीज समझ आई, like you also said that हाँ, land is something that can't be made more, land is gold. But when I see properties in Camellias going for 100 CR, somewhere or the other I feel like ये एक
stupidity है in that sense कि like a waste of money है. You could have bought a piece of your country's land, had that as cherished that and kept it forever and passed it on from generation to generation. कल को ये कमिलियास से ऊपर एक डालियास आ रहा है, अब वो हो जाएगा 200 करोड़ का, फिर कमिलियास का क्या प्राइस रह जाएगा? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? बिकॉज मेरा ओपिनियन तो कहता है दिस इज स्टूपिड इन दिस सेंस. I sort of do agree with you. मैं Okay. लैंड का सबसे ज़्यादा काम करती हूँ. Hmm. That's my favorite thing to do. Hmm. And I completely agree कि आपको लैंड रखना चाहिए. But जो अपार्टमेंट, that's what I said कि हर क्लाइंट की, हर फैमिली की आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है. Hmm. जो लोग कमिलियाज में रहते हैं, they are living there for a reason. Hmm. Number one, they're probably very close to their workspace. Okay. They're living there for the lifestyle. Okay. They're getting to network there. They have that kind of money. They are making money out of living there only. अगर आप कमिलियास में रह रहे हो, आप कमिलियास क्लब में जाओ, वहाँ पे इनफ नेटवर्क कर लेते हो कि आप वहाँ से बिजनेस बना सकते हो. आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है टू योर ऑफिस ऑल्सो. Okay. बिकॉज वैसे से लोग वहाँ रह रहे हैं. Fair. जो ये लैंड खरीदना है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. अगर आप आइसोलेटेड लैंड खरीद लोगे कहीं पे, Hmm. ऑब्वियसली वो इतनी तेजी से नहीं अप्रिशिएट करेगा. वेराज जैसे DLF अल्मेडा कॉलोनी है, Hmm. जहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट है, उसके आसपास स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, मॉल्स है, रिटेल, कमर्शियल, फूड प्लेसेस टू इट. दैट इज हाउ द अप्रिसिएशन हैपेंस. Okay. Okay. कमिलियाज भी है. जब अरालियाज लॉन्च हुआ था, वो 95 लाख रुपीस का लॉन्च हुआ था. किसी ने नहीं प्रिडिक्ट किया था. मेरी खुद की मम्मी ने नहीं प्रिडिक्ट किया था. Hmm. मेरे डैड दिखाने गए थे कि मैंने बेचा है प्रोडक्ट. वो जंगल था गुड़गांव. मेरी मम अब बोलती है कि तब पापा ने बोला था हम खरीद लेते हैं. हमने क्यों नहीं खरीदा? बिकॉज नाउ शी सीज द गोल्फ कोर्स रोड. Yeah. Yeah. तो इट हैपेंस ओवर टाइम. नाउ इट ट्रेड्स एट 35-40 करोड़ रुपीस. उसने 10x जो अप्रिसिएशन देखी, अब जाके देखिए 2025 में. And जो ये प्रोडक्ट कभी नीचे भी आएगा in your opinion? देखो, 100 रुपए की चीज कभी 20 रुपए की नहीं बचेगी. हो सकता है फ्लक्चुएशन आए, डाउनफॉल आए मार्केट में. 100 रुपए की चीज 80 की हो जाएगी, मैक्सिमम 75 की हो जाएगी. Hmm. बट रियल एस्टेट है नहीं पॉसिबल उससे नीचे. Okay. और एक चीज होती है मार्केट में, टेम्परामेंट. Hmm. एक जो सेलर होता है, कोई सेलर होता है जो रखना चाहते हैं, जिनके पास कैपेसिटी है रखने की. Okay. वो बोलते चल मैं इस साल नहीं बेचता, मैं अगले साल बेच दूंगा. Hmm. कुछ लोग होते हैं जो पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग लेते हैं, जिनके पास पॉकेट नहीं होती है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देने की, तो डिस्ट्रेस सेलिंग करते हैं. वो सस्ते में बेच के चले जाते हैं. Okay. वो भी फ़र्क होता है. सो हर टाइप का सेलर भी है, हर टाइप का बायर भी है. Okay. कुछ लोग हैं जो 6 महीने पहले बता देते हैं कि श्रद्धा मेरे को 6 महीने बाद ऐसी चीज़ चाहिए, तो तुम मेरे को दिला दियो, ढूंढ के रखियो. सो वो प्री लॉन्च वाली चीज़ें होती हैं, या उनको प्लॉटेड डेवलपमेंट करना होता है, कोलैबोरेशन करनी होती है, जेवी करनी होती है. सो हर टाइप का अलग, एवरी सिंगल क्लाइंट इज़ डिफरेंट. Okay. Let's touch upon something that you mentioned earlier, which is builder floors. It's in my opinion, a new concept that's come up because of Gurgaon, and now people are adopting it in Delhi also. What's your view on builder floors? A good idea, bad idea, good investment, bad investment? वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, स्पेशली फॉर एंड यूजर्स. Okay. पहली एक्चुअली मैं बिल्डर से शुरू करूँगी, क्योंकि मेरे पापा ने पुराने ज़माने में बहुत बिल्डर फ्लोर्स ही बनाए हैं. मैं जिस घर में रहती हूँ, उनकी खुद की कंस्ट्रक्शन है. मैं भी बिल्डर फ्लोर में रहती हूँ, बट वो पुराने ज़माने वाला सीडीओ वाला Okay. एंड एवरीथिंग. अब तो पूरे स्टिल्ट विल्ट के साथ पार्किंग के इशू को रिजॉल्व करने के लिए विद लाइक ऊपर टेरेस रूम एंड एवरीथिंग. सो नाउ तो बिल्डर फ्लोर्स आर फैंटास्टिक. तो अगर आप एंड यूजर हो, नथिंग लाइक इट. Okay. आप गुड लोकेशन लो, पार्क फेसिंग लो, आगे बढ़िया 12 मीटर की सड़क हो, बेस्ट थिंग टू डू. And That should be the first investment you make if you're entering into real estate, buying a house for yourself. ओके, थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं वापस से आके. क्या एवरेज क्या कहते हैं उसको, पर स्क्वायर फीट रेट Yeah. है ना, दैट रेट्स क्या चलते हैं आजकल गुड़गांव में? अगर आप थोड़ा लोकेलिटी सेपरेट करके बता सको तो. ठीक है. गोल्फ कोर्स रोड से स्टार्ट करते हैं, जहाँ आपका कमिलियाज है. वहाँ पे रेजिडेंशियल जो है वो 50-60,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड कर रहा है एटलीस्ट. ओके. दैट मेक्स अ प्रॉपर्टी जो 10,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मिल रहा है वहाँ पे, वो 50 करोड़ रुपए का हो गया ओके. bare minimum. Golf course extension दिस road, इज फॉर अपार्टमेंट्स यू आर सेइंग? yeah, apartment. ओके, लैंड का सेम है? सो लैंड जो प्लॉट वहाँ पे मिलते हैं DLFAs 1, 2, 3 में, हाँ. वो लैक्स में होते हैं, बिकॉज Okay. दैट्स अ स्क्वायर यार्ड थिंग, राइट? Yes, yes. अपार्टमेंट एक हाई राइज में है, उसमें आप अपनी अमेनिटीज के लिए भी पैसे देते हो, बहुत सारी चीज़ें अलग होती है. Okay. सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लाख 4 लाख दिल्ली के एट पार चल रहे रेट गुड़गांव के प्लॉट के.
सो डू यू फील प्राउड दैट क्योंकि आपकी एक स्माइल आ गई जैसे ही आपने ये बोला? क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके। मेरे को 5 साल हो गए काम करते हुए। मेरे को पता था कि हाँ, पहुँचेगा। हाँ। इस तेज़ी से पहुँचेगा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और मैं ट्रैक रखती हूँ, हम्म। काफ़ी अच्छा ट्रैक रखती हूँ कि हाँ, कौन-सी साइड पे क्यों डेवलपमेंट हो रही है। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक आप सड़क बना दो उस ब्लॉक तक जाने की, हम्म। आपके घर का रेट ऐसे बढ़ जाएगा। तो खुद ही बना लो सड़क अब डीएलएफ पे। की प्रॉपर्टी के प्राइस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, सबसे पहली चीज़ लॉन्च करने से पहले वो वहाँ की सड़क, वहाँ की अप्रोच बनाती है कि जो हम 10 लाख ब्रोकर उनके साथ काम करते हैं, हम अपनी गाड़ी में जाके हाँ। उनका लैंड पार्सल देख पाएँ, उसको स्टडी कर पाएँ और उसको फिर बेच पाएँ। हम्म। जो क्लाइंट होता है, वो भी जब मैं उसको घर दिखाने जाऊँगी, अगर मैं उसको कच्ची सड़क से बुरे रास्ते से लेके जाऊँगी, तो वो नहीं खरीदेगा। ही से आई कांट बाय दिस। या। सो द अप्रोच रियली मैटर्स। ओके। एंड या यू वर कंटिन्यूइंग ऑन टेलिंग हाँ, अस द तो द रेट्स। रेट्स तो फिर या। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड व्हिच इज़ द नेक्स्ट गोल्फ कोर्स रोड, वहाँ ओके। पे भी रेज़िडेंशियल आज की डेट में 25,000 रुपीज़ के आस-पास 35 पे तो ट्रेड कर ही रहा है। और ओके। वहाँ पे तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हैज़ अ वेरी गुड मिक्स ऑफ रेज़िडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। ओके। लाइक इट्स टू गुड। वहाँ की प्लानिंग गोल्फ कोर्स रोड से मेरे को बेटर लगती है, क्योंकि जो मास्टर प्लान अगर आप देखोगे, उसमें उन्होंने फ्रंट बेल्ट सारी कमर्शियल कर रखी है, पीछे रेज़िडेंशियल। सो देयर आर मोर revenue roads and better access to all the projects, whether it's a commercial project or residential. हम्म। And very good developers are there. AIPL का बहुत अच्छा काम है, IDO की बिल्डिंग है, एमआर द बेस्ट, उसका बहुत बड़ा लैंड पार्सल है वहाँ पे, कमर्शियल रेजिडेंशियल मिक्स. सो मिक्स यूज लैंड इज ग्रेट ऑन द ओके। एक्सटेंशन रोड. देन यू कम टू एसपीआर. एसपीआर इज़ द अपकमिंग, जहाँ पे डीएलएफ का प्रिवाना है, सिग्नेचर ग्लोबल की इतनी बड़ी टाउनशिप है जहाँ पे गोल्फ कोर्स बना रहे हैं वो. सो कमर्शियल हब, अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑलरेडी वहाँ पे ऑफिस है, एयर इंडिया. हम्म। सो ऑल ऑफ दैट इज डूइंग ग्रेट. वहाँ पे कमर्शियल के रेट्स 15,000 20,000 रुपए आजकल ट्रेड कर रहे हैं. ओके। All these residential projects are launched at 23,000 rupees per square feet. So that is a fantastic rate. ओके। अगर आप उसको कंपेयर करो जो प्रोजेक्ट्स गोल्फ कोर्स रोड पे इनिशियली लॉन्च हुए थे, देयर इज़ अ डिफरेंस. वाई? बिकॉज इस साइड पे दे आर लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स ओवर टाइम when there is better infra. हम्म। There are people who are able to get there. वहाँ पे बसावट शुरू हो गई है. SPR पे साइबर सिटी 2 लॉन्च करेगी DLF. ओके। So obviously that is going to make a huge difference. It's connected to the Dwarka Expressway from the Cloverleaf. ओह। So सो आपने Gurgaon आपने is ये booming. ये मेंशन किया, मेरे को यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था. अकॉर्डिंग टू दीज रेट्स, व्हाट डू यू थिंक राइट नाउ इज सेलिंग एट अ डिस्काउंट? कुछ भी नहीं. ओके। प्रीमियम पे बिक रहा है सब कुछ. मेरे ओके। को बता दो कोई ये देख रहा हो तो, ओके। कि कुछ डिस्काउंटेड मिल रहा हो तो. तो फिर तो अगर आप ऐसे बोलते हो तो व्हाई वुड एनीवन लुक एट गुड़गांव एज एन इन्वेस्टमेंट देन इफ एवरीथिंग इज सेलिंग एट सच अ प्रीमियम? It's about time. Right now it's not selling at a premium really. ओके। It is justified most rates. ओके। जो जो रेट मांग रहा है डेवलपर, वो जस्टिफाइड है. ओके। वो उतना ए ग्रेड मटेरियल, ए ग्रेड प्रोडक्ट आपको डिलीवर करके देगा. उतनी अमेनिटीज़ होंगी आपके पास, उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी. अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग में हो, दे आर मेकिंग श्योर दैट इट्स फुल्ली कंप्लायंट. हम्म। कि हम्म। आपको कल को रेंट पे चढ़ानी हो, कोई एमएनसी आए यूएस यूके से, हम्म। तो वो वहाँ पे अपना ऑफिस खोल पाए. हम्म। They are so investor friendly at this point, these upcoming areas especially. They हम्म। might not be end user, हम्म। but हाँ, मेन पॉइंट तो ये होता है कि आज मैंने खरीदा तो कल कौन खरीदेगा. हम्म। बट वो ये जो जब तक कल आएगा तब तक वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका होगा और इतने सारे और लोग आना चाहेंगे गुड़गांव में हम्म। कि वो बिकेगा. आज वो बिल्डिंग हो सकता है खाली हो कमर्शियल, ओके। आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हो मेंटेनेंस चार्जेस उसके, हम्म। बट वो कल को आरओआई जब वो चढ़ेगी रेंट पे, तो वो इतने अच्छे रेट पे चढ़ेगी कि इट विल ओवरपावर द लॉसेस दैट यू मेड. ओके। रियल एस्टेट एक ऐसा धंधा है जहाँ पे कभी भी लाइन सीधी नहीं जानी चाहिए. ईसीजी रिपोर्ट जो होती है आपकी, हम्म। उसमें हमेशा ऊपर नीचे रहता है. हम्म। रियल एस्टेट का साइकिल भी ये है. अगर ओके। प्रॉपर्टी नीचे नहीं जाएगी तो कभी ऊपर भी नहीं चढ़ेगी, और वो नीचे से ही शुरू होती है. हम्म। इमेजिनेशन, यहाँ पे जंगल बिकता है, एज आई सेड मैं हवा बेचती हूँ यार. हम्म। लाइक तो अगर और हवा और डेजर्ट और जंगल की बात करें, तो अगर मैं आपको गुड़गांव से थोड़ा और आगे ले जाऊँ, राजस्थान साइड, वहाँ पे आपको क्या एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है? क्या एरियाज हैं जहाँ पे लोग देख सकते हैं जो अभी मे बी पीनट्स में मिल रहे हो उनको? टियर 2 में हम्म। जयपुर,
सोनीपत, पानीपत। डू यू थिंक वहाँ तक डेवलपमेंट ग्रोथ आएगी, वहाँ तक पॉपुलेशन एक्सपैंड होगी, वहाँ तक गोल्फ कोर्स रोड जैसी ग्रोथ आएगी? गोल्फ कोर्स रोड से तो नहीं कंपेयर करूंगी। सब मेरे को यही बोलते सर, गोल्फ कोर्स रोड तो नहीं बन सकता। यार गोल्फ कोर्स रोड अलग चीज है, वो इट्स द मैनहट्टन ऑफ इंडिया राइट नाउ। वहाँ पे क्या नहीं है? गुड़गांव के लोग आजकल नहीं आते दिल्ली, सब है गुड़गांव में। यू डोंट नीड टू स्टेप आउट ऑफ गुड़गांव टू गेट एनीथिंग। फेयर, या आई वहाँ पे एग्री। सारा लाइफस्टाइल भी है। वहाँ पे पहले होता था गुंडागर्दी ये सब, अब हार्डली, बहुत कम। मैं खुद बीइंग अ गर्ल आई हैव बीन वांटिंग टू शिफ्ट टू गुड़गांव, माय पेरेंट्स आर अगेंस्ट इट। मैंने बहुत बारी बोला लेट मी शिफ्ट अलोन। पहले दे यूज्ड टू से इट्स नॉट सेफ, नाउ इवन दे आर ओके बिकॉज द जेंट्री इज चेंजिंग देयर। देयर आर Yes. मोर कॉर्पोरेट्स, देयर आर मोर लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। एज वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर कि वहाँ पे यूके जैसा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि आप ऊपर काम कर रहे हो, नीचे जाके बियर पी रहे हो, घर जाके सो रहे हो, नेक्स्ट डे इज द सेम ग्राइंडिंग। Yes, yes. So Gurgaon life is Gurgaon life. You can't Yeah. compare it to anything else, not even to एक Noida. ओल्ड आइडियोलॉजी है जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे एल्डर्स में है, दैट दिल्ली जैसा कोई कुछ नहीं हो सकता, दिल्ली को कोई बीट नहीं कर सकता। डू यू बिलीव दैट? थोड़ा सा तो करती हूँ। Born and Okay. brought up in Delhi. यहाँ का हेरिटेज, हम्म यहाँ की वार्मथ, हम्म यहाँ का उठना बैठना, जो लाइफस्टाइल है ना, वो थोड़ा सा तो देखो अलग है. There is a silver lining. ओके। The kind of people you meet in Delhi are different. ठीक है, आप पार्टी वार्टी करते हो, पैसे कमाते हो गुड़गांव में, वो अलग है. हाँ बट गुड़गांव जो ये वो वाली जनरेशन है जिनकी आप बोल रहे हो, ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स एंड एवरीबडी वाली, वो ये मानती है। बट अपकमिंग जनरेशन तो हम ही है। हम ही है, हमारे लिए वो डिस्पैरिटी मैटर नहीं करती. क्यों? क्योंकि जो वी आर मोर फाइनेंशियली लिटरेट, Yes. नंबर वन. दे व्हाट आई सी नाउ, एज आई सेड आई वर्क विद थर्ड जनरेशन, मेरे को क्या रियलाइज हो रहा है, उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा वास्ट है. ओके। उनको कोवर्किंग स्पेस भी चाहिए, उनको प्लॉटेड डेवलपमेंट में एक प्लॉट भी चाहिए, उनको लैंड पार्सल भी चाहिए, उनको एक अपार्टमेंट भी चाहिए, उनको जनरेशनल वेल्थ भी बनानी है, उनको फ्लिपिंग भी करनी है. वेयर एज जिनके पापा थे वो ये थे कि मेरे को लैंड दिला दो, वो पड़ा हुआ है, जब मेरा बेटा आएगा तब वो बेचेगा, तब वो बिजनेस में सर्कुलेट करेगा. हाँ तो आजकल के अपकमिंग मिलेनियल्स, जेनजीज, दे वांट द मनी टू बी सर्कुलेटिंग, दे वांट द बेस्ट लाइफस्टाइल नाउ आल्सो एंड इवन टुमारो. यस हमारे पेरेंट्स का था कि हमारे पास जितना है हम अपने बच्चों के लिए छोड़ जाए टाइप. ट्रू ट्रू Not that my father has that concept, but still, ट्रू that's majority of the people. Okay. So it makes a difference. ओके। बट एक लास्ट, अगर आप कैमरा में देख के सीधा बता सको, इफ समवन हैज लेट्स से 2-3 crores right now, can they or can they not invest in Gurgaon? Yes, they can. And where should they? Dwarka Expressway. Okay. Yeah, so you heard it right here. Dwarka Expressway, 2-3 crores तो is doable, I लेके think. आओ, मैं लगवाती हूँ. Done. So contact Miss Shraddha. She is going to get you good property. This was the Finance 101. I think आपकी true knowledge इस segment में निकल के आई है. Thank you for sharing all that you did. But we are now moving to my favorite segment, which is the curiosity gap, जहाँ मैं अपने दिमाग से curious topics, curious से सवाल लाता हूँ, so that the audience can also be a little curious about what's it gonna be. Yeah. So we'll catch you guys in the next segment now. Welcome back. We are now in the curiosity gap segment, and without wasting any more time, we're gonna straight dive into the topic जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था, the next Gurgaon. In your opinion, डंके की चोट पे, what is the next Gurgaon? Next Gurgaon is the new Gurgaon. Okay, what is the new The Gurgaon? connectivity that this highway is making, NH8 के पैरेलल जो चल रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे, फिर वो CPR से SPR पे कनेक्ट हो रहा है. अभी हम उसके लेफ्ट साइड पे गुड़गांव को बोलते हैं. अब जो उसके राइट साइड पे आ रहा है वो सारा का सारा न्यू गुड़गांव है. सेक्टर 95, 94, 108, 104, 103, इट्स ऑल अपकमिंग, इट्स बूमिंग. Okay. वहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इट्स अनबिलीवेबल. सारे के सारे डेवलपर्स वहाँ पे लैंड पार्सल्स बना रहे हैं. इट्स गोइंग टू बी लाइक हाउ सुशांत लोक एंड DLF आर टुगेदर integrated, just like that. And the connectivity to Delhi is going to be phenomenal. हाँ. It's going to be non-stop. Like आप सीधी सड़क पे चल के आ सकते हो. Okay. And a 15-minute connectivity from Golf Course Road to that side of town. There are highways getting made. So slowly and steadily that will come up. And वहाँ पे अभी क्या rates चल रहे हैं? अभी तो 25-30 के बीच में ट्रेड करते हैं सारे, बट वो भी 50 पे पहुंचेंगे ना.
And जब तक वहाँ within पे बसावट आएगी, जब हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे तो वो तो खरीदना ही चाहिए फिर, why not that? 100% वहाँ पे DLF के इतने सारे प्रोजेक्ट्स है. अल्टिमा एलान का एक मॉल है वहाँ पे, that is going to be like ambience mall of that side. Okay. So there are multiple projects. एंड अगर हम थोड़ा दिल्ली एनसीआर रीजन से बाहर निकले तो जो हमने ग्रोथ गुड़गांव में देखी है वैसे कहाँ देखने को मिल सकती है? पटौदी है, पटौदी. या पटौदी, बिलासपुर है, झज्जर है, ये सारे एरियाज है. हम्म. सो दैट्स व्हाट, ये जो हाईवेज है ना, ये ऐसी कनेक्टिविटी है. जब वहाँ पे सड़क बन जाती है, वहाँ पे ट्रक जा सकता है, तो वहाँ पे घर का मटेरियल जा सकता है, लोग जा सकते हैं रहने, और दुकानें खुल जाएंगी, ऑफिस स्पेसेस बन जाएंगी. सो पीपल विल स्टार्ट मूविंग देयर. व्हाट हैपेंस हियर इन गुड़गांव कैसे बना है, येट अगेन वी कम देयर. From people from smaller towns are moving to Gurgaon for job opportunities, for better lifestyle, for better upbringing, for better schools, for better medical. लोग इसीलिए आ रहे हैं. आप अगर मेडिसिटी मैदानता के आसपास जाओगे, वहाँ पे एटलीस्ट 100 होटल टाइप्स बने हुए हैं, मोटेल्स बने हुए हैं, जहाँ पे लोग आके रहते हैं ऑन मंथली बेसिस. वाई? बिकॉज दे गेटिंग एन ऑपरेशन डन देयर. There are people who have holiday homes in Gurgaon, who live in UP, who live in other parts of Haryana, who come to Gurgaon for work on a weekly basis and want to have their own house and that comfort. ओके. तो ऐसे ही इस साइड पे भी बन रहा है. सो इट्स द न्यू गुड़गांव. वाह, आई थिंक काफी प्रिसाइज आंसर दिया है यहाँ गुड़गांव पे. स्टार्ट हुआ था ना एकदम एम्बियंस मॉल वाले टोल से. ओके. अब मानेसर वाले टोल तक पहुंच चुका है गुड़गांव. आप वहां तक जाओगे, आपको राइट लेफ्ट दोनों साइड पे सिर्फ बिल्डिंग्स और लोग ही दिखेंगे. जो ये ट्रैफिक की आप रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे, वो एक्चुअल है. मैं खुद 4-4 5-5 घंटे के ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ. तो कुछ तो है गुड़गांव में जो लोग वहां जा रहे 100%. हैं. या तो इसको एक्सपैंड तो करना पड़ेगा. आई थिंक काफी ज्यादा डेंस हो गया अब बहुत है. डिमांड है भी. है. सर्टेन एरियाज में डिमांड और सप्लाई का खेल हैंड इन हैंड चलता है. ओके. कुछ एरियाज में कमर्शियल का इतना ज़्यादा सप्लाई है कि वहाँ पे अभी लोग पहुँचे ही नहीं है, तो वो ऑफिस स्पेस कैसे चलाएंगे. But that's what, once residences get delivered, people start taking possession, they start moving in. Obviously, other things will also. So knowing all of this, इतनी information है आपको, इतना inside secrets भी पता हो गए. आपको अगर आज मैं बोलूँ कि आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कहाँ करोगे सबसे पहले? There's a land parcel in 93 sector. ओके. 10-12 एकड़ का है. ओके. वो खरीदना चाहती हूँ. I think that is prime land. न्यू गुड़गांव में पड़ता है That's where you would invest. Yeah, right now, if I had the money. Okay. And you're not saying that just because आपको वहाँ पे कुछ डील मिल रही है, but डील तो वैसे तो मैं फिर जो अभी एकदम हॉट स्पॉट से गुड़गांव की वहाँ पे करना चाहूंगी ना, एक्सटेंशन रोड, SPR, द्वारका एक्सप्रेसवे. बट मैं ना एक रूल में मानती हूँ, हलवाई अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता. तो मैं मानती हूँ अगर मैं रियल एस्टेट में काम करती हूँ, if I earn the money, I put it in my cycle. I'd rather put it in my business or help people pick up projects and everything rather than buy my own thing. Okay. So if I have to do it, I will do it for long term कि मैंने लेके खरीद के भूल गई उसके बारे में. And being a female, मेरे को नहीं rental income में इसका बस शौक. Like I think I'll make my own work and I'll earn my own money. I think rental income maybe when I'm like 50, that's when I'll consider कि अच्छा मेरे को काम धाम नहीं करना है, तो मैं rental income करती हूँ. अब I'm 25 years old, like I can make my own money. I don't think I need to buy property here and there to just have a source of income. I have Great enough. thinking, yeah, great ideology. हमने next गुड़गांव की तो बात करी, but I know it's your business, bread and butter, you wouldn't want to say it, but it's important for people to also be wary of certain locations where they shouldn't invest. ऐसे आपके दिमाग में कोई एक एरिया, कोई एक लोकेशन ऐसा है where you would not encourage people to invest in? Deserted lands, like people who don't have that vision. जैसे ऐसा I do लैंड का काम, तो जिसके पास विजन नहीं है ना, तो आप मत जाओ वहाँ. जो आप विजुअलाइज कर सकते हो, आपसे वो खरीदो. Okay. बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो रेडीमेड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास वो नहीं है बैंडविड्थ कि वो सोच पाए कि 6 प्लॉट है, यहाँ पे बिल्डर ऐसी बिल्डिंग बना के देगा, इवन इफ यू शो हिम द सैम्पल. So buy something that you can only visualize, that you have faith in. I think that's great advice and makes sense. I understood it. If you guys didn't try to understand what she actually said, because real estate में, like she also mentioned, हवा बेच रहे हैं लोग, At and the वो end of the day, I need visualization to is give them important. peace. Yeah, It's the peace of mind. yeah, yeah.
That's very true. Besides the money also, it's the peace of mind. अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो, आप चैन की नींद घर पे सोना चाहते हो बिल्कुल. कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाएगी, मेरे नाम पे है, everything else matters. So for peace, you yourself need to be satisfied with what I'm buying with. मैं कभी भी किसी को प्रॉपर्टी थोपती नहीं हूँ. I'd rather lose a client than give him something that he doesn't want. That's why I said the requirement is very important. आपको नहीं पता, take your own time. मैं कहीं नहीं जा रही हूँ. I'm in this business to stay. मुझसे कल को कोई गलती भी हो सकती है. I'm ready to pay back. I've seen that with my father. My father has been in it for 30 years. It's not easy to maintain and sustain in an industry like real estate. मैंने उनका प्राइम टाइम भी देखा, उनका डाउनफॉल भी देखा. बल्कि डाउनफॉल के टाइम पे only I started working with him because I could see that he wanted to sustain. He felt that he had that baggage that he wants to get rid of. अभी भी उनको 30 40 साल पुराने उनके इन्वेस्टर्स फ़ोन करके बोलते हैं कि सर आपने प्रॉपर्टी बेची थी. आप अभी भी उनको 2-3 सवाल पूछते हैं. डॉक्टर साहब अभी भी ज़िंदा हो? अभी भी काम करते हो? मेरा ये काम है, कर दोगे? यही 3 पेटेंट सवाल होते हैं जो मेरे डैड को कॉल आती है. So I want to take that forward. I feel that legacy is something that I have inherited, but I want to renew it. I want to modernize it, but I want to make sure that it's taken forward with the same goodwill that. I think that's a great segue for our next topic, which was the change in society and how it affects real estate. Like you mentioned, you want to modernize your father's business, and we also spoke about how the new generation thinks differently. Like, in my opinion, for me, yes, Delhi is at top in terms of everything, the vibe and everything. But I personally would also prefer living in a city like Gurgaon because of, yes, I can drive my own car there. I can't even get on the road and drive myself in Delhi sometimes. So and वहाँ पे yes, multinational companies है. ये जो change of thinking, ये जो change of generation, एक societal change आया, I think after COVID, like you also mentioned, people are really giving value to wellness, health, and peace of mind in that sense. How is this affecting real estate, and going forward, what do you think will happen in the real estate industry because of this? I will start with modernization. When I started working, all my friends, colleagues, everybody said, Shraddha, start with real estate on Instagram, become an influencer. So I said, पागल हो क्या? कौन खरीदेगा 2-4 करोड़ रुपए का घर? मैं क्या करूंगी? Welcome to this house. तू टी-शर्ट ड्रेस खरीद लेती है. Are you mad? You're not going to buy houses. Slowly and steadily, I started seeing Dubai real estate. वहाँ पे people started making reels and everything. In Delhi also, people started. North India. One of my friends also started. I was like, wow, okay, this can happen. I started checking it out. I told my dad also कि पापा ऐसे Instagram पे reel बननी, should I also try? But then, something hit me. That real estate is something that's very exclusive. It's very personal. When somebody buys property, वो ऐसे advertise नहीं करते कि वो मैंने खरीदा है. वो बहुत लो की रहता है, बहुत पर्सनल लेवल वो पे एक उसको इंडियन डील करते मेंटालिटी हो. है. इंडियन क्या, इट्स ऑलवेज लाइक दैट. इवन इन द यूएस, इवन इफ दे आर फ्लिपिंग, Yeah. नोबडी नोज अबाउट योर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो. Yeah. आप नॉर्मल टी शर्ट शॉर्ट्स में घूम रहे होगे, आपके पास बिलियंस का पोर्टफोलियो होगा, नोबडी वुड नो. Yeah. सो दैट्स इट्स अ वेरी लो की थिंग. तो मैंने डिसाइड किया कि चलो, आई विल स्टार्ट विद इन्फ्लुएंसिंग, Okay. बट आई विल कीप इट वेरी funny and candid, and how the struggles are, and I want to actually make a broker network. Okay. क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो ये इंडस्ट्री है, ये हैंड इन हैंड काम करती है. आज मेरे पास बायर है, हो सकता है आपके पास प्रॉपर्टी हो जो वो खरीदना चाहते हो. इफ यू हैव अ बायर, आई हैव अ प्रॉपर्टी दैट needs to be sold, right? So it works hand in hand. जरूरी नहीं है कि हर ब्रोकर के पास दोनों चीज़ें को फुलफिल करने के लिए. बिल्कुल. Gone are those days जब एक दूसरे को काटते थे, टक्कर का कंपटीशन था. Now the industry is better. Obviously, it is a filthy industry as well. हर टाइप का बंदा होता है इसमें. तो मैं वो filter out करके करती हूँ. Okay. But modernization, as I was talking about, Instagram has made a lot of difference. Okay. These portals, 99 acres, Magic Bricks, इन सब से बहुत सारी लीड्स जनरेट होती है. जो ट्रेडिशनल वे से न्यूज़पेपर एड, वो अभी भी काम करते हैं. नो डाउट दे डोंट वर्क. जो एक्चुअल रिच HNIs, UHNIs हैं, वो अभी भी न्यूज़पेपर में खोल के प्रॉपर्टी वाला सेक्शन देख के देखते हैं क्या अवेलेबल है मार्केट में. Oh, I didn't know हो that. सकता है वो अंकल ओल्ड हो, उनकी you have to by the end of the day deal with his son or somebody else who handles his portfolio, but at the end of the day, the actual money is coming from those people only who are that intellectually present, still going through, even if it's the TUI on your phone. Okay. So all of that is there.
एंड And जो एक माइंडसेट चेंज आया है विद द न्यू जनरेशन कमिंग अप, उसके वजह से क्या इफेक्ट आएगा रियल एस्टेट new पे? money, new money has a role to play. People, as you said, we're talking about COVID. कोविड के बाद लाइफस्टाइल वेलनेस का बहुत ज़्यादा अब एक बेसिक नेसेसिटी है एयर प्योरीफायर होना. I was reading recently only where someone had written in an article that जैसे एसी हर घर में है, वैसे एयर प्योरीफायर हर घर में आ जाएगा. ये इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट्स आपको पता है अभी तो शायद लोग प्रीमियम नहीं पे कर रहे होंगे सस्टेनेबिलिटी का इको फ्रेंडली, बट इन द फ्यूचर पीपल विल बी पेइंग प्रीमियम फॉर इट. व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर हेल्थ इज योर वेल्थ. बिल्कुल. If you're feeling well, you will pay money for it. People, Yeah. why do people go to the gym and everything? Pay so much money, dietitian. अपने लिए आप अपने आप में तो इन्वेस्ट करते हो ना. तो रियल एस्टेट में जिस घर में आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी, वो हमेशा बेटर प्राइस पे बिकेगा. Okay. So this ecosystem and this eco-friendly sustainability, all of this wellness is picking up. COVID के बाद तो लोगों को they're investing in themselves So through their house, in this fresh sense, air. जो मेरे को समझ आ रहा है, you're trying to say थोड़ा मुश्किल या complicated हो जाएगा अब रियल एस्टेट में भी, because they'll have to consider a lot of factors before making new developments, making new buildings, etc. 100%. So there's another vertical that I work in. It's called facility management. Okay. So basically facility management maintenance का काम होता है. Okay. और मैं ये काम जब से देख रही हूँ मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, बिल्डिंग जितनी पुरानी होती जाती है उतना मेरा बिजनेस बढ़ता जाता है. Okay. Obviously. क्योंकि पहले तो मेंटेनेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड होती नहीं है, हाँ. बट विद टाइम एसी का AHU का सिस्टम चलना कम हो जाता है तो हम्म. उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है. कभी कहीं पे सीलन आ गई, कहीं पे कोई पपड़ी बन गई, कहीं पे कोई टाइल गिर गई, कोई गार्ड पुराना हो गया, यार हॉर्टिकल्चर का काम अंदर बाहर. हाँ. सो ऑल ऑफ दिस मेक्स अ डिफरेंस. हाँ. जो ये बिल्डिंग्स बन रही है दे नीड टू बी आइदर मेंटेन रियली वेल. प्रॉपर्टी का प्राइस क्यों बढ़ता है, DLF का क्यों बढ़ता है, क्यों? क्योंकि वो मेंटेनेंस उनकी इतनी गुड है. अरालिया जितना पुराना प्रोजेक्ट है, उनका क्लब हाउस ओल्ड था, नाउ दे आर डिमोलिशिंग दैट एंड मेकिंग अ न्यू वन. Okay. They are giving people what they've paid for and what they are asking for. So in real estate it is going to be tricky with all of these sustenance क्योंकि फिर construction cost बढ़ जाती है. आपको justify करना भी तो ज़रूरी है. अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो जो 10 करोड़ का, आप क्यों मांग रहे हो? आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 7,000 8,000 स्क्वायर फीट क्यों है? इसीलिए क्योंकि आप बेस्ट मटेरियल यूज कर रही हो, गिविंग देम द बेस्ट काइंड ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स. इनसाइड ग्लास फसाड है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है आपके पास. आई थिंक एक ओवरऑल स्टैंडर्ड बढ़ गया है रियल एस्टेट का. लिविंग स्टैंडर्ड वैसे ही बढ़ गया है. yeah. रियल एस्टेट ही ऊपर बढ़ गया है. या सो वो एक मिनिमम जो थ्रेशोल्ड होता था, जो एक्सेप्टेबल होता था एट मे बी लेट्स से 10-20 इयर्स बैक, वो अब बिल्कुल वो भी नहीं बेसिक यू आर करेक्ट. बेसिक नेसेसिटीज जो है लोगों की वो मॉडिफाई हो गई हैं. तो उसके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और उनको करना भी नहीं चाहिए. उनको वहां जाके सोना है भाई, चैन की नींद सोना चाहते हैं. या fair. Yeah. And last topic for the curiosity gap segment, you had mentioned abhi only about how हर तरह के लोग होते हैं when you're in this industry and you try to filter them out. I wanted to know some secrets, some experiences that you have had that were so interesting or that made you think at night, or you know, or that made you share with your parents that मेरे साथ आज ये हुआ, that you could tell us also about. हाँ, ऐसे होते रहते हैं फनी इंस्टेंसेस इधर उधर. जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया, आप वो बताओ. ये आया कि नॉर्मल लैंग्वेज में आई एम अ ब्रोकर, कंसल्टेंट, एडवाइजर, ये सब तो बस शुगर कोटेड वर्ड्स है. ब्रोकर हूँ. ओके. सो यू नो बिकॉज ऑफ दैट एक डील बहुत एज ऐसा बिग चंक ऑफ मनी होता है इसमें. तो बहुत डील्स में 3-4 ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके. तो हमेशा कोई ना कोई किसी को दबाने की कोशिश करता है, कोई किसी से ज्यादा आपको पैसे किसी ने कमाने. दबाने होता बहुत होता है. अच्छा. वो तो अब होता है मतलब डेली बेसिस पे होता है? डेली बेसिस पे तो नहीं होता, बट 2-4 डीलों में से 1-2 में हो जाता है दैट यू नो योर ब्रोकर, लाइक इफ यू 2 brokers working, he's trying to take your client or he's asking for more money because he's keeping a cut in it. लैंडिंग वैंडिंग बहुत कुछ ब्रोकरेज में भी राइवलरीज होती हैं?
होती तो है, So जैसे अगर does कोई DGS have one rival? No, DGS has no rival because it's all the expertise that DGS gives. Okay, it's The faith, okay. trust, transparency. DGS is the class apart. Yeah. But वैसे rivalries होती है हाँ brokerages में. होती है, बट दैट्स व्हाट आई थिंक, मैं इसको हेल्दी कंपटीशन मानती हूँ, Okay, हाँ. क्योंकि एज आई सेड हैंड इन हैंड चलता है. हो सकता है शुरू में आपकी मेरी ना बने, क्योंकि मेरा क्लाइंट है, आपका सेलर है, आप चाहते हो आपके सेलर को ज़्यादा पैसे मिले, मैं चाहती हूँ मेरा क्लाइंट कम पैसे दे. हाँ. सो नॉर्मल सी बात है ना, सब ये चाहते हैं. तो वो ये कि नेगोशिएट करके एक कॉमन ग्राउंड पे लेके आना ज़रूरी है. उसके लिए जो दोनों ब्रोकर्स है उनकी भी एक ट्यूनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी वेव लेंथ मैच होना. तो मेरे साथ बहुत बारी हुआ है, मैं किसी ब्रोकर के साथ काम कर रही हूँ, मैं भी थोड़ी सी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की हूँ और होना पड़ता है, हाँ. क्योंकि जब आप जाओ एंड बीइंग अ फीमेल, उनको नहीं, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू, सो यू नो यू हैव टू शो योर बेस्ट कार्ड्स. Yeah. तो दैट टाइम यू गेट इनटू क्वारल्स एंड दे बी लाइक कि आप क्या कर लोगे, ऐसे ठीक है. तो I'd rather not give them a product. बाद में मेरे को पेपर वर्क में अगर उसके साथ कांटेक्ट करना है, हाँ. I get into that quarrel and mess. Sorry bro, I'd rather stay out of it. Okay. ऐसी फनी चीजें होती रहती है, 6-7 ब्रोकर मिलके बहसबाजी करते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं. हाँ. बिल्डिंग्स के बाहर मैं दिखती हूँ, गाड़ियों में बैठे होते हैं ब्रोकर, एक दूसरे क्लाइंट को लेके जाते हैं, ऑफिसेज होते हैं हाँ. डेवलपर्स के, उनके लॉन्चेस होते हैं वहाँ पे. तो ये सब ड्रामा चलता रहता है, बट इट्स फन. Yeah, it's fun. मैं दूर से देखती हूँ, I'm a spectator, I am not a part of it. इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आप बता सको हमें क्या क्या चलता है, so that people can also get to know, because real estate में not everything is on paper. शोशाबाजी का बिजनेस है, क्या लगता है ड्रामा नहीं होगा? फुल ड्रामा चलता ड्रामा से है. आता है, ड्रामा एक पूरा शो बना दिया है इन लोगों ने, राइट? What's it called again? $1 million listing. Yes, $1 million listing, right? अब ये ऐसे shows आते हैं और इसमें हमें देखने को मिलता है that लोग बैठे हुए हैं दिन दिन भर कॉल्स कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा. एक परसेप्शन बन जाता है कि कैसे चल रहा है. स्पेसिफिकली वो तो गुड़गांव का ही शो है, आई फील. वहाँ गुड़गांव रियल्टर्स ही है उसमें Yeah. मोस्टली. सो एक परसेप्शन बन जाता है. बट एक मेरे को बिहाइंड द सीन्स बताओ थोड़े आप, जो वो भी नहीं दिखा रहे हमें कि ये चीज़ें भी होती हैं रियल एस्टेट में. बिकॉज आई नो एवरीथिंग इज़ नॉट ऑन पेपर, आई नो एवरीथिंग इज़ नॉट ऑल क्लीन. ऐसे कुछ इंस्टेंसेस आपके साथ हुए हैं जो आपको शेयर करने हैं दैट ये सब भी होता है रियल एस्टेट में? देखो, बिहाइंड द सीन्स में तो सबसे पहली चीज़ है, ईगो बहुत ज़्यादा है रियल एस्टेट में. ओके. सबकी, एवरीबडी, बायर, सेलर, ब्रोकर, सब डेवलपर. सबकी ईगो एकदम टॉप पे है. ईगो इन व्हाट सब सेंस? अपने आप को तीसरा रखा समझते हैं अच्छा. कि ये प्रॉपर्टी तो मैं ही बेचूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं बेच सकता, मेरे को मैंडेट दे दो, दिस एंड दैट. वो है लाइक, दैट्स व्हाई आई सेड दिस बिजनेस इज लाइक दैट. दिस इज व्हाट इट इज. सो जैसे $1 million लिस्टिंग है, उसमें दे डोंट शो द नेगोशिएशन दैट गोज बिहाइंड. ओके. वी आर नॉट जस्ट रियल्टर्स, वी आर साइकोलॉजिस्ट्स. हमें लोगों का समझना पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं. उनसे 2 कदम आगे चलना पड़ता है, उनको बेस्ट प्राइस देना पड़ता है. यू हैव टू मेक श्योर, आई डोंट वांट टू कोट माय क्लाइंट्स अ हाई प्राइस और गेट माय सेलर अ लो प्राइस. इट शुड बी अ जस्टिफाइड रेट इन द मार्केट. जो आपने मांगा है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, और जो मार्केट का रेट है उसी के हिसाब से मिलना चाहिए आपको. तो ये सारी चीज़ें वो शो में नहीं दिख रही हैं. शो में क्या आपको वैसी डील में नहीं दिखती है, जो सामने वाला बंदा होता है उसको नहीं पता होता व्हाट ऑल इट टेक्स. वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस इन इट. इट्स नॉट ईजी. कोल्ड कॉलिंग, मैंने जेन्युइनली, अगर मैं 5 सालों से काम कर रही हूँ, पहले 2-3 साल तो मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया था. मैं अपने डैड की सैलरी पे काम कर रही थी, जो कर रही थी. आई ओके. स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड जीरो. आई हसल्ड माई वे थ्रू अप. आई हैव डन लाइक 200-300 कॉलिंग्स. अभी भी आप मेरा जो फ़ोन नंबर है मिलाओगे, बहुत सारे लोगों के फ़ोन पे स्पैम आ सकता है लिखा हुआ, बिकॉज़ आई ओह. हैव डन दैट मेनी कॉलिंग्स. ओके. Emails, I've made like 2-3 emails that I've sent, like emails to NRI clients, whatnot, gone for outreaches. So it takes a lot. Suited booted, सुबह उठ के पहुंचना पड़ता है, मेहनत लगती है. मैं दिल्ली से गुड़गांव एवरीडे जाती हूँ, तो वो आसान नहीं है. गर्मी में जाना, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है. अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस नहीं हुआ है. मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा, तो आई एम ग्लैड तू घर वापस आ. ऑब्वियसली बेटी हूँ, सो पूरा मेरा आइस बॉक्स जाता है साथ, मम्मी की ब्लेसिंग्स उसमें. ओके. तो ये सब इट टेक्स अ लॉट. रेकी करनी पड़ती है लैंड की. ऐसा क्या लगता है कि इट्स नॉट इजी मनी, घर बैठे बैठे नहीं मिलता है ऐसे. 100%. बट मैं कुछ और पूछ रहा था. मैं पूछ रहा था, अब जैसे डिजिटल इंडिया भी आ गया है, सब कुछ डिजिटल है रियल एस्टेट मार्केट में, सब कुछ. इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं. यूएस में तो मैंने सुना है, दुबई में भी एक ऐप है जिसपे सेकंड्स के हिसाब से अपडेट होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कितने में बिकी, कहाँ पे बिकी, किसने बेची, एवरीथिंग. ऐसा कभी इंडिया में हो सकता है? अभी तो नहीं हो सकता. मिक्स पेमेंट का कॉन्सेप्ट है सर यहाँ पे. ओके.
So अभी भी चलता है हाँ वही हाँ फुल सब चलता है. एंड वो कभी खत्म नहीं होगा in your देखो होगा, opinion? people are moving towards it now. A lot of people are asking for full check and properties are getting sold at full check. Like DLF की कोई property नहीं है जो check में बिकते. 90% developers की अब नहीं है, बहुत मुश्किल से है कि real estate है. I don't think I should be saying it, but यहाँ होता है. तो but India में time लगेगा, अभी नहीं होने वाला है. जैसे in foreign countries I've heard that people are buying properties off of credit card. Sorry, we'll take some time. Okay. Yeah. We are still on bag of money. You heard it right here. That was Miss Shraddha Gupta. Thank you so much. Thank you for all that you shared. And before you go, एक हमारा रिवाज है podcast का. If you see, there's a pair of shades and pen right behind you. I would need you to pick up those pair of shades, sign it on one lens, and write your name on the other. And I'll keep this as a memory that I did a podcast with you. I just need you to wear those pair of shades and show it to the camera. Show them how cool you're looking. The queen of real estate, that's Miss Shraddha Gupta from DGS Realtors. And that's me as usual, Adhiraj Sethi, signing out. Don't forget to like, share and subscribe. You guys know the drill. We'll see you in the next one.